أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Today, the Majlis Bachao Tehreek has organized a press meet in connection with in view of demolition of the Babri Mosque. We want to give our views through the press to the public that on 6th December 1992, the demolition of Babri Masjid was a black dot on the Constitution of India as well as the secularism of the India. It's a clearly Gundaism created by the fascist organizations like Bharatiya Janata Party and Vishwa Hindu Parishad and other organizations. So, the first party who has raised the voice on the earth of India is the voice raised from the Hyderabad on the platform of Majlis Bachao Tehreek by Shri Muhammad Amarullah Khan, that MLA and the president of Majlis Bachao Tehreek, founder of Majlis Bachao Tehreek. Masjid is a holy place for the Muslims, where they pray for 5 times, and its integrity of the masjid is the responsibility of all the Muslims and the secular credentials of the peoples of the India. Anyway, there was a big conspiracy which was hatched by the then Congress government as well as the fascist organizations. So, I want to liberally speak in Urdu. So, the conspiracy was started when the East India Company entered into the India and they want to divide the Hindu and Muslims. So, this East India Company created a fuss at that time by putting idols in front of the Babri Mosque. And then from that time, the Janmabhoomi question arises, and Hindus and Muslims are fighting in between for the masjid and the mosque. For the meantime, this issue was raised and this issue was subsided. Then, when the Indian National Congress was formed in 1887, again this issue was raised and it was subsided. Then, when India got the independence in 1947, then the Chief Minister of Uttar Pradesh, Govind Vallabh Pant, in his Chief Ministership, the India was becoming a democratic country. So at that time, this issue was again raised because the Congress wanted to mobilize the votes through the Hindu sentiments, and they had created the fuss, and there was a huge hooliganism at that time when the Muslims went to the mosque at the 5 o'clock in the morning, and then there was a huge fuss was created and hooliganism was then,
and this case was handed over to the court, and the Babri Masjid was locked at that time, 1949, and round about in 6th or 26th December, like that. Afterwards, the many prime ministers came after the Jawaharlal Nehru. Indira Gandhi was the prime minister, Lal Bahadur Shastri was the prime minister, VP Singh was the prime minister. Nobody has dared to open the lock of the Babri Mosque because they were seeing that there will be a bloodshed in India and the integrity of the India will be at the stake if we open the Babri Masjid lock open. Then after that, the Narasimha Rao, whose basic education was being done in the RSS shakas in Nagpur, he knows the history of Islam as well as the revolutions which has come in the Muslim community. So Narasimha Rao hatched the conspiracy, and Salahuddin, who was the neighbor of Mr. Narasimha Rao in Hyderabad, he was hired for all these activities. So in 1987, when the Rajiv Gandhi became the Prime Minister, and there was a personal law bill was passed in the Shahbanu case in the Parliament, so all the Hindu community voices against the Muslim personal law bill. So the Rajiv Gandhi was given advices by people like Arun Nehru and other like that. So you have to please the Hindu community, the majority community in the country. That is why. So they have hatched a conspiracy, and they have done the Shilanyas, and their petition was put in the Allahabad High Court on the bench of Mr. K.A. Pandey, and within 2 hours they got the permission for the Shilanyas. And the Shilanyas was performed, but the mosque, which was closed since 45 years, but Muslims were not allowed to pray in the mosque. But the Shilanyas was performed, and after that the BJP, who in democratic process, they are not coming to the power, they take up the issue of the communal issue by hatching a conspiracy, and they took the issue of Ram, and Mr. Advani took out the Yatratra in the whole country, and there was a bloodshed, there was a communal riots and other thing, all disturbance was created, and by hook or by crook they came into the power again, till yet. But the issue was pending like that only. In this conspiracy, when Mr. Salahuddin Owaisi, who was fighting the parliament election from Hyderabad in 1990, the nearest rival was Mr. Badambal Reddy. So Badambal Reddy has put a petition in the court of writ petition number 1 of 1990 in the court, saying that Mr. Owaisi has won the election by Mr. Salahuddin Owaisi has won the election by creating a communal speeches and by creating a hatredness against the communities. So this petition was going on. Meantime, there was a Babri Masjid coordination committee was working in the country for the safety of the Babri Mosque. So this Narasimha Rao, on the instance of the Narasimha Rao, another committee was formed, that was Babri Masjid Action Committee, and Mr. Salahuddin was given the responsibilities for that, to take over the responsibility. He is from the Hyderabad. There was no need for Mr. Owaisi to become the action committee president, Babri Masjid Action Committee, but he has not shown any action to safeguard the Babri Mosque. But instead of that, this Mr. Salahuddin Owaisi act on the direction of Mr. Narasimha Rao at that time, and he used to come in Hyderabad and deliver speeches in front of the Charminar and near the Kali Kaman and near the Makkah Masjid, saying that बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि में एक चट्टान है, उसका नाम सलाहुद्दीन अवैसी है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की हलफ में एक कांटा है, तो उसका नाम सलाहुद्दीन अवैसी है। इस तरह कहकर जो है तकरीरें करते हुए मुसलमानों को ये कहते रहे, मुसलमानों तुमको घबराने की जरूरत नहीं, अभी सलाहुद्दीन जिंदा है, अभी बाबरी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जो है ना कहकर मुसलमानों को नींद की ख्वाबावर गोलियां खिलाकर तपक तपक कर सुलाते रहे, और जो है ना इस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करने की पूरी प्लानिंग चलती रही। और उसके बाद ये साजिश कैसे हुई, सलाहुद्दीन कैसे साजिश में इन्वॉल्व है, तो जब पिटीशन चल रहा था, बदम्बाल रेड्डी सलाहुद्दीन के खिलाफ में इलेक्शन पिटीशन फाइल किए थे, 1990 का पिटीशन नंबर 1 था, तो जब कोर्ट के अंदर जो है ना बातचीत हुई, तो जो है ना बदम्बाल रेड्डी ने कैसेट्स पेश किए सलाहुद्दीन की तकरीर के, और बदम्बाल रेड्डी से पूछा गया मजिस्ट्रेट के जरिए से ये आवाज़ किसकी है,
सलाहुद्दीन की आवाज को हैदराबाद का ओल्ड सिटी का हर बच्चा अच्छी तरीके से जानता, लेकिन सलाहुद्दीन की आवाज को पहचानने से बदम्बाल रेड्डी इनकार कर गए और कहे कि मैं नहीं जानता, जबकि खुद कैसेट्स दिए थे जो। और फिर उसके बाद में जो है ना ये मुकदमे से दस्तबरदारी हुई, बदम्बाल रेड्डी जो है ना अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर जो है ये केस खत्म हुआ और फिर इनको बाबरी मस्जिद का मसला सेटल करना था। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार के घर के ऊपर मीटिंगें होती रही। शरद पवार कभी जो है सलाहुद्दीन के घर पे चक्कर काटते रहे दिल्ली के अंदर, होटल्स के सूट्स बुक हुए और डिस्कशन चलते रहा। और इनको भी जो है ना उसके बाद में जो है बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद के बाद लोगों ने पूछा आपने सलाहुद्दीन से बंद कमरे में क्या बात की, तो उसने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद के मसले को हल कर लिया है। क्या हल कर लिया? फिर रमजान खान बीजेपी का एमएलए राजस्थान का आता है दारुसलाम को, बंद कमरे में बातचीत होती है, कोई एमएलए उसके अंदर जो है ना उनको नहीं बुलाया जाता, कोई पार्टी के जो है ना डिग्निटरीज को नहीं बुला के बात करते, पर सलाहुद्दीन सिंगल कमरे में बात करते रहे। इसी तरीके से जो है ना ये साजिशें होती रही और 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तो दिल्ली के अंदर अलीगढ़ के नौजवानों ने जो है ना पोस्टर्स लगाए कि सलाहुद्दीन की शेरवानी के अंदर नरसिम्हा राव नोटें भर रहे हैं और एक कंधे के ऊपर जो है ना बाबरी मस्जिद उठाए हैं। तो नौजवानों को जो है ना वहां की पुलिस ने खूब पीटा और इनके घर के घेराव करने से रोका गया। इसी तरीके से आप दिल्ली के अंदर बैठे रहे, हैदराबाद के अंदर क्या सारे हिंदुस्तान के अंदर बंदूक की नालियां मुसलमानों के सीनों और सरों पर बौछार कर रही थी, तो उस वक्त कोई लीडरशिप आके जो है ना उनका तहफ्फुज़ नहीं करी। इसी तरीके से जो है कार सेवक जो है ना बाबरी मस्जिद को शहीद करके जब हैदराबाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे आए तो उनका इस्तकबाल जो है ना हुकूमत की जानिब से किया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज करने वालों को गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। इस पर जो है ना सलाहुद्दीन अवैसी ने वहां से एक ही अल्फाज में बात कही कि जो है खान साहब को कहो, अमानुल्लाह खान साहब को यहाँ एहतजाज करने की जरूरत नहीं, मैंने नरसिम्हा राव से वादा ले लिया है, फिर से उसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर कर दी जाएगी। लेकिन 18 दिन के बाद सलाहुद्दीन अवैसी जब बाबरी मस्जिद के एहतजाज में जो लोग मरे थे उनका भी 40 डेज का जो है ना चहलुम नहीं हुआ था, लेकिन जो इन्होंने जो है ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एफिलिएशन लेकर बेगमपेट एयरपोर्ट से जो है ना हैदरगुड़े तक बाजे बजाते हुए आए। अगर इनको मुसलमानों से हमदर्दी होती, मुसलमानों से जो है ना मोहब्बत होती, मुसलमानों के खून से इनको लगाव होता, तो ये मुसलमानों की लीडरशिप का दावा करने वाले सलाहुद्दीन अवैसी अभी चहलुम नहीं हुआ था बाबरी मस्जिद का, वहां से नौजवान बाजे बजाते हुए। और उस मीटिंग के अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत नहीं थी जिसका नाम मोहम्मद अमानुल्लाह खान था। और उसके बाद में जब जो है ना ये पब्लिक के जो है ना माइंड को जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे, बहरहाल फिर एक साल गुजर गया बाबरी मस्जिद शहीद होके 93 दिसंबर 6 दिसंबर को अमानुल्लाह खान ने दारुसलाम की छत के नीचे एहतजाज किया, तो अमानुल्लाह खान को पार्टी से जो है ना सस्पेंड कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। उसके बाद अमानुल्लाह खान ने फिर 6 दिसंबर 93 को जो है एक जो है ना बंद का कॉल किया, आंध्र प्रदेश बंद का, और प्रोटेस्ट किया जो है ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो है ना जिस तरीके से किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसके घर के अंदर जो है ना 1 ईयर होने के बाद एक डेथ एनिवर्सरी होती है, उसी तरीके से डेथ एनिवर्सरी के तौर पर जो है ना बाबरी मस्जिद का गम मनाने के लिए अमानुल्लाह खान ने बंद का ऐलान किया। तो आज जो लोग दारुसलाम के अंदर बाबरी मस्जिद का जलसा कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। यही दारुसलाम से ऐलान किया गया था कि जो तहरीक ने बंद का ऐलान किया है वो बंद की मुखालिफत की गई। मजलिस के कारिंदे निकलकर जो है मजलिस के कारपोरेटर्स निकलकर हैदराबाद के अंदर जहाँ दुकानें बंद की गई थी दुकानें खुलाने की कोशिश की गई, तो फिर पब्लिक ने उनको ऐसा जवाब दिया कि फिर वो जो है ना भाग निकले और उनकी चली नहीं। 96 तक जो है 1996 तक दारुसलाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाबरी मस्जिद का बंद का ऐलान नहीं किया, ना बाबरी मस्जिद की जो है ना बंद की मुखालिफत की, और जो है ना इन्होंने जो है ना कोई पब्लिक मीटिंग नहीं किया और कोई एड्रेस नहीं किया बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। जब पार्लियामेंट इलेक्शन करीब आया 96 में तो फिर इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, मुसलमानों को जो है ना मोबिलाइज करने के लिए इन्होंने फिर से जो है ना 96 में बाबरी मस्जिद का जलसा किया। और आज मुसलमानों से हमदर्दी की बात करने वाले आज चारमीनार मंदिर कैसे याद आ गई। जमाने से हम कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती आई है। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त जब मुसलमानों का एम्प्लॉयमेंट 33% था जो है, यही कांग्रेस के दौर के अंदर, यही 60 साल इंडिपेंडेंस के दौर में जो है ना कांग्रेस का जो है ना एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, 33% से लेकर 1% हो गया, 5% हो गया। लेकिन जो है ना मुसलमानों की लीडरशिप का दावा करने वाले मिस्टर ओवैसी एंड फैमिली जो है, सिर्फ ये लोग जो है ना
इनको जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते आए हैं और कभी इनको मुसलमानों से कोई दिलचस्पी नहीं रही है, इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं। जहाँ तक मंदिर का इशू है, मंदिर के चार मीनार की मंदिर थी, इसके लिए क्लियरली दुनिया को मालूम है। हिंदू पेपर ने भी अखबार में फोटो डाला था कि 1960s के अंदर जो है ना यहाँ पर कोई जो है ना टेम्पल वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो है ना उसके बाद में जो है ना कुछ एक पत्थर को जो है ना वहाँ पर का पूजा की पाठ करने के बाद फिर उसको तोड़ा गया, फिर वहाँ पर मंदिर बनाई गई। ठीक है, मंदिर बनाई गई और इतने साल से वहाँ पर वो मंदिर चल रही है। हर दशहरे को और दीपावली को वो लोग डेकोरेट करते हैं और मंदिर के पुजारी जो है, लेकिन आज ही MIM को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी वहाँ पर जो है? इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इनके कुछ पर्सनल गेन्स थे जो है कांग्रेस से, और वो गेन्स फुलफिल नहीं हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने जैसा कि महावीर हॉस्पिटल का जो है ये जो है ना ओवैसी हॉस्पिटल टेक ओवर करना चाहता था। फिर उसके बाद एतमाद प्रेस के लिए जो है ना वहाँ जमीन की जरूरत थी, सालारे मिल्लत एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए वहाँ पर इनको जमीन की जरूरत थी, वो फुलफिल नहीं हुए इनके डिमांड, तो इनको कांग्रेस जो है ना आज इनको जो है कांग्रेस कम्युनल पार्टी नजर आने लगी और कांग्रेस के खिलाफ में पूरे स्टेट के अंदर फिर के जो है मूवमेंट चलाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान हैदराबाद से लेके आंध्र प्रदेश का मुसलमान किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं चलना है वो अच्छी तरह जानता है। इनके कहने के ऊपर किसी के साथ चलने की बात होने वाली नहीं है। मंदिर का इशू इसीलिए उठाया गया ताकि इंटरनली तौर पर जो है ना ये कहा गया बीजेपी से कि जो है आज बीजेपी कहती है कि जो है ना MBD के साथ मिलकर MIM को डिफीट देगी। सवाल ही नहीं पैदा होता बीजेपी का और MBD का अलायंस का। हाँ, MIM के साथ जो है ना अलायंस करके कांग्रेस को डिफीट दे सकती है, तेलुगु देशम को डिफीट दे सकती है। ऑन आउटलुक मैगजीन के अंदर एक जो है ना आर्टिकल आया कि MBD एंड बीजेपी जो है ना MIM को डिफीट देगी। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काकर मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए इस तरीके से जो है ना MIM खुद जो है ना ऐसे न्यूज़ डलवाती है। किशन रेड्डी का स्टेटमेंट आता है 4 TV के ऊपर मजलिस के खिलाफ में, तो मुसलमान गुस्से में आके और जो है ना इनके साथ जो है ना यूनाइट होके जो है ना मजलिस को सपोर्ट करना। तो मंदिर को जो है ना नहीं बनाने की इशू की बात करो और हम मंदिर की बात करेंगे। हिंदू कम्युनिटी में बीजेपी चाहती है वो स्ट्रांग होना और मुस्लिम कम्युनिटी में MIM चाहती है वो स्ट्रांग होना। इसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स को जो है ना उभार के जो है ना वो अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं। इससे पहले भी स्पीचेस दिए कि मुसलमानों अगर तुम मजलिस को वोट नहीं देंगे तो तुम्हारे निके मंदिरों में पढ़ाए जाएंगे और जाफरानी झंडा चार मीनार पे लहराया जाएगा। मुसलमान जो है ना भोले भाले जाकर जो है ना मजलिस का साथ दिए। ये पॉलिटिक्स हमेशा चलती आई है। तो हम ये मैसेज प्रेस के जरिए से मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को और सेक्युलर लोगों को ये देना चाहते हैं कि इनकी जो है ना कम्युनल जो है ना स्पीचेस के ऊपर ना जाए, बल्कि जो है ना सेक्युलर क्रेडेंशियल के ऊपर जो है ना और आदमी की जो है ना कैपेसिटी और उसकी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर जो है ना अपने कैंडिडेट को जो है ना आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है ना आप इलेक्ट करने के बारे में आप फैसला करें। तो यही है कि 6 दिसंबर के दिन हमेशा जो है ना अमानुल्लाह खान ने जिस तरीके से पहला बंद किया था उसी तरीके से हम प्रेस के जरिए से सारी कम्युनिटी को, सेक्युलर लोगों को और मुसलमानों को हम ऐलान करना चाहते हैं कि 6 दिसंबर के दिन मजलिस बचाओ तहरीक आंध्र प्रदेश बंद का ऐलान करती है। उस बंद के दिन हम जो है ना निकलकर दुकानें नहीं बंद करवाते हैं, बल्कि हम वॉलंटरीली बंद करवाना चाहते हैं। लोग जो अगर मस्जिद से मोहब्बत रखते हैं और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म फ्लैग को जो है ना हाई रखना चाहते हैं, तो उनसे हमारी ये अपील है कि जो है ना आप अपने लेवल के ऊपर ये काम गलत है समझ के जो है ना आप बंद का ऐलान करें हैं और बंद को जो है ना सक्सेसफुल बनाना हर सेकुलर जो है ना हिंदुस्तान के शहरी की जिम्मेदारी है और सेकुलर हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी है। और उसी तरीके से जो है ना 6 दिसंबर को बंद करके ये बताएं कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया कि आधा तुम ले लो, पौ तुम ले लो, एक हम ले लो, ये जो है ना पार्टीशन सूट फाइल नहीं किया गया था। फैसला होना था तो किसी एक पार्टी के हक में होना, या मस्जिद के हक में होना, या मंदिर के हक में होना था। नहीं, जजेस बैठ के एक फैसला कर रहे हैं, तुम इधर मस्जिद बना लो, इधर मंदिर बना लो, इधर प्ले ग्राउंड बना लो। ये कौन सा फैसला था? ये सिर्फ जो है ना जुडिशरी के ऊपर एक ब्लैक डॉट है जो है, और ये सिर्फ जुडिशरी अपने लेवल पे काम नहीं किया है बल्कि जो है ना गवर्नमेंट के इंस्टेंस के ऊपर जो है ना काम किया है। और ये फैसले को जो है ना हिंदुस्तान की सेक्युलर कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल नहीं मानती है। इसके लिए भी सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाली पार्टी का नाम मजलिस बचाओ तहरीक था, जिसमें अमजदुल्ला खान खालिद ने सोनिया गांधी के और जजेस के पुतलों को जलवाया। तो यही एक खान कमिश्नर था जो MIM के गुलाम की हैसियत से काम कर रहा था। उसने जो है ना 65 प्लाटून पुलिस को भेजकर जो है ना अरेस्टिंग करवाया और कई जो है ना केसेस में बुक करवाया गया। उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही थी? आज बाबरी मस्जिद का जलसा करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, यही रहीम कुरैशी ने पलट के एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो गिरफ्तारी हुई मजलिस बचाओ तहरीक की जो है वो उनका जो है ना इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जमहूरी हक है इनका एहतजाज करना कहकर जो है ना नहीं कहा गया।
बल्कि जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है ना मजलिस चाहती थी कि जो है ना पब्लिक को मोबिलाइज करके जो है ना एहतजाज करना चाहती, किस मसले के अंदर, अपने पर्सनल गेन के लिए, जहां पर इन्हों जो है ना लैंड डीलिंग्स के अंदर कब्जे करना चाहते हैं। बारकस के अंदर वाकया हुआ, मोहम्मद पहलवान से डिमांड किया जा रहा था कि हमको जो है ना तुम्हारी लैंड के अंदर 70% हमको हिस्सा दो। यही मोहम्मद पहलवान ने तुमको 99 में सपोर्ट किया, यही मोहम्मद पहलवान ने तुम्हारे को 2004 के अंदर सपोर्ट किया। आज मोहम्मद पहलवान लैंड डीलिंग के अंदर तुमको शेयर नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए तुम जो है ना मोहम्मद पहलवान के खिलाफ में जो है ना गवर्नमेंट और पावर का इस्तेमाल करते तुम परेशान करने लगे। वो इंसिडेंस आया बारकस का, इंसिडेंस के अंदर तुम जूते खाए, वहां पर लाता खाए। उसके बाद मजलिस चाहती थी कि पूरे मुसलमान मिलके जो है ना शहर के अंदर हंगामा करे। इतने स्पीचेस दिए, इतने जलसे किए, लेकिन तहरीक ने सिर्फ 3 पब्लिक मीटिंग किया और उसके बाद जो है ना पब्लिक के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया और फैक्ट्स मालूम हुए कि ये वाकया क्या था, अकबर पे क्यों अटैक हुआ। अमानुल्लाह खान साहब 22 साल एमएलए रहे तो कभी जो है ना किसी ने अटैक नहीं किया। तो ये वाकये के अंदर ये सिर्फ जो है ना बिजनेस की राइवलरी की वजह से जो है ना ये अटैक हुआ। और उस अटैक के बाद जो है आज नाइंसाफी इतनी हो रही है, एक आदमी मर गया, इब्राहिम याफई उनका बेटा, 2 जने शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जो है ना एक केस जो है ना बुक नहीं करती है उनके खिलाफ के अंदर जो है, और फिर इन्हीं को जो है ना मोहम्मद पहलवान ने पूरी फैमिली को अननेसेसरीली कॉन्स्पिरेसी में डालकर, मोहम्मद पहलवान स्पॉट पे भी नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी में डालकर जो है आज 9 महीने से जो है ना उनको जो है ना एक बार बेल होने के बाद फिर बेल कैंसिल करवाई गई जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, एडवोकेट जनरल के जरिए से उनको जो है ना जेल को भेजा गया। ये सारी इनजस्टिस, सारी नाइंसाफी हो रही है। तो उसके बाद अब फिर जो है ना इनके ऊपर एक 302 केस बुक किया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, 307 केस बुक किया गया, लेकिन पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? मामूली सी 324 केस होता है तो पुलिस वाले घर पे आते हैं, उठा के रात में लेके चले जाते हैं। क्यों अकबरुद्दीन पे बलाला के ऊपर केसेस पुटअप हुए, क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है? परसों जो कारपोरेटर्स गड़बड़ करे कम्युनल राइट्स के अंदर, उस वक्त कारपोरेटर्स पे केस बुक किया गया, लेकिन 7 कारपोरेटर्स जो है ना खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। पुलिस और कमिश्नर क्या कर रहे हैं, डीजीपी क्या कर रहे हैं, कानून क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर की हुक्मरानी क्या कर रही है? हम पूछना चाहते हैं कि एक खानदान को जो है ना, तुम तो कह रहे हैं आपस में तो हमारे इख्तलाफात हैं, हमारी लड़ाई है, तो फिर जगन के ऊपर जैसा इम्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस डाला गया, एक बैरक जेल के अंदर खाली है, वहां पर इनको इम्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस के अंदर अकबरुद्दीन असदुद्दीन को भी भेजा जाए। ये दौलत कहां से आई अकबरुद्दीन के पास, असदुद्दीन के पास जो है ना? आज हिमायत सागर के ऊपर 5 एकड़ के ऊपर जल महल कहां से बनाया जा रहा है? चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है सारी गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर बलेदिया का, जीएचएमसी का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। वहां पर 7 स्टोरीज बिल्डिंग कैसे जो है ना एमआईएम वाले जो है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं? क्या सारी मीडिया की आंखों के ऊपर पट्टी बनी हुई है? सारा म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर आंखों पे पट्टी बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इनकी गुंडागर्दी ऐसी चलती रहेगी? अब एक्शन लो। इम्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में इनको भी अंदर डाल के पूछो कि इतने करोड़ों रुपए कहां से आए, तुम्हारे बाप के क्या कारोबार थे, सलाउद्दीन के बाप के अब्दुल वाहिद अवैसी के क्या कारोबार थे? हम पूछना चाहते हैं, हम आवाज दे रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है बाज अखबार में आता है, बाज अखबार में नहीं आता है। अगर वाकई जस्टिफाइड करना है, ये हमारे दिल की और पब्लिक की कॉमन आवाज है। जो लोग जो है ना करप्शन के खिलाफ में काम करना चाहते हैं, जो लोग जो है ना ब्यूरोक्रेसी की करप्शन के खिलाफ में काम करना चाहते हैं, वो मेरे स्टेटमेंट को जो है ना हाईलाइट करें और इम्प्रोपोर्शनेट एसेट के बारे में एक इंक्वायरी बिठाई जाए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए, एक जजेस का पैनल बिठा के इनके पास इतना पैसा कहां से आया, अकबर के पास, असद के पास करोड़ों रुपए की दौलत कहां से आई, उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। और हमारा यही मुतालिबा है कि मासूम अवाम को जो है ना, जिनके ऊपर जो है ना कानून के जरिए से परेशान करने की कोशिश की जाती है, अकबर को भी, असद को भी जो है इस मोहम्मद पहलवान के केस में 302 307 के केस के अंदर इमीडिएट अरेस्ट करके इनको जेल को भेजे। और उसके बाद जो है ना हम समझेंगे कि हुकूमत वाकई इंसाफ करना चाहती है। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के जो एटीट्यूड अडॉप्ट किया जाता है उसके खिलाफ में हम आवाज उठाते हैं। तहरीक का काम यही है, यही मेरा बयान था आपके सामने। और 6 दिसंबर को जो है ना बंद का ऐलान तहरीक करती है और वॉलंटरली बंद का ऐलान करती है। अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो हमारे वर्कर नहीं होते हैं, समझना चाहिए। और जो है ना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इस ताल्लुक से, और जुडिशरी को ये बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहते हैं एमबीटी के जो है ना ये डिमांड्स है और इसको फुलफिल करें, मुल्क हम ये आपके सामने पेश करें।